A very good evening to everyone. Welcome to this session. Good evening, sir. Good evening. Today we will be discussing about scientific communication. So, when we are creating our research, then it is very important that we have to present our research. We have to communicate our research. So that is in the form of a scientific communication. Only we can communicate our research to the academic community or the stakeholders, um, or approving. Um, entities who will approve our research. So scientific communication is a very important activity that we have to compulsorily perform to communicate our research information. So why we need scientific communication? It is to let the academic community know about our research achievements. So the academic community or the research community should know that what we have achieved. So to defend our research area idea, that um, that our research idea is valid, we will present our research idea along with some facts and supporting documents and supporting references that will help us to defend our idea of research, to help others understand that we have done in our research, what we have done in our research, and how it is beneficial for others, to communicate our ideas to the masses so that other researchers can get inspired from it. सो साइंटिफिक कम्युनिकेशन यूज़ करके हम जो है अपने रिसर्च आइडिया को पूरी रिसर्च कम्युनिटी को प्रॉपर वे में फॉर्मेट में बताते हैं, अनाउंस करते हैं, सो दैट वी गेट some response from the academic community. Also, we expect that the academic community accepts our research idea, our innovation. So this helps in both ways. It helps us to uh, be satisfied that our research is valid and it is a novel research that we have done, and also it is beneficial for the research community also, who are upcoming researchers can get ideas from our research to continue with their own research. Science and scientific communication, uh, क्या है? What is science? Science is the systematic enterprise of gathering knowledge about the world and organizing and condensing knowledge into testable laws and theories. So as we are following scientific approach, so scientific approach needs that we gather information from the research community, from the research world, and from the knowledge that you have acquired from the research world, we organize that particular knowledge, we evaluate that particular knowledge in our own way, and we apply some theories and laws, and we modify um, some processing uh, algorithms and create our own way of presenting our research. So there is a scientific way that there should be some source from which we are getting inspired. There is a scientific way. The objective of scientific communication is to accurately and clearly communicate the new scientific knowledge. Hence, it is intimately linked with the scientific method. So, we are performing some research based on scientific facts. So, our research is scientific research, and communicating the scientific research is another scientific method to help the research community know about our new findings. So, what is the scientific method? Scientific method helps to make careful observations of the world. So, we have to observe the phenomena that is happening, and if we are lucky enough or keen enough to observe the scientific phenomena, we can get ideas, new ideas from the phenomena which is happening in the real world. Ask a question based on what has been seen. So what we see, what has been already seen, उसका जो है हम नॉलेज को गेन करते हैं, एंड उनसे इंसाइट्स क्रिएट करके वी क्रिएट अवर ओन साइट, propose some tentative answers or hypothesis depending upon our own observations, हमारा own experience, our own experience and observations. We propose some hypothesis, some tentative answers,
to the phenomena that we are observing. एक न्यू वे में, एक नोवेल वे में हम उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं. इट इज़ नॉट बीइंग, मतलब एक ऐसे एंगल से हम चीज़ को देखते हैं जो पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं था. use the hypothesis to make predictions about new as yet unobserved data or phenomena. So the hypothesis or the algorithm or the process that we have imagined or proposed, we apply it on the actual data and then predict or then get some output from the data. So we develop the model, we develop a model, and we apply the data to the model and observe the output. And according to the output, we then analyze the output. We understand whether our output is worth mentioning or not, or worth presenting or not. If it is worth presenting, then we use the scientific way of presenting the work. Test predictions by making observations of new data. So we train our model. Then after training the model from using an existing data, we then give our model with new data, and then we observe whether the our model is predicting properly or not, and reject hypotheses that fail to predict new observations. So it is very obvious mm, if the model is not predicting in a right manner, or the margin of error is too much, then we reject the hypothesis or the model that we have created. Then we go on for some other angle of understanding. दूसरे एंगल से हम सोचते हैं और मॉडल को मॉडिफाई करते हैं. ये हम कंटिन्यूसली करते जाएंगे. दिस इज द साइंटिफिक मेथड. इसको कंटिन्यूसली करना, इटरेटिव फॉर्मेट में करते जाते हैं इसको, जब तक हमारा रिजल्ट जो है एक्यूरेसी लेवल हाई तक नहीं पहुंचता है. सो द मेन इंटेंशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इज टू मेक अवर मॉडल मोर रिफाइंड. उसकी एक्यूरेसी और रिफाइनमेंट उसको बढ़ाते हैं उसके हम. सो शुरुआत में हम स्टार्ट करते हैं विद ए हाइपोथेसिस. उस हाइपोथेसिस को हमको पता नहीं है वो सही है कि गलत है. हम हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या एक मॉडल तैयार करते हैं. मॉडल के ऊपर डेटा अप्लाई करते हैं. डेटा अप्लाई करने के बाद जो है हम उसमें जो है एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, फाइंडिंग्स निकालते हैं. अगर वो फाइंडिंग जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट हुआ. अगर वो फाइंडिंग जो है वो हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं तो हमको दूसरा हाइपोथेसिस बना के फिर मॉडल को डेवलप करके फिर डेटा पे काम करना. मतलब ये एक कंटिन्यूसली इटरेटिव प्रोसेस जैसे रहता है. इसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं. इसको हम फॉलो करते हैं अपने रिसर्च में. सो टू कम्युनिकेट अवर फाइंडिंग्स, one of the ways is to perform the communication using written communication. So when we are communicating using written communication, that is writing a research paper or doing some poster presentation or creating some um, slides for our presentation. So especially written communication is more on creating written matter like a research article. So it should be clear. The entire content should be clear, should not be confusing in any way. It should be logical. So if someone is reading our articles, claims that we have put in our articles, or the way the procedures that we have followed in our process should be logical, should have some basis, should be factual. Our content should be very much factual. It should be based on facts. So already established and universally accepted जो facts हैं उनके बेसिस पे फिर हमको अपना कंटेंट बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कंटेंट होगा वो फैक्चुअल बनता है. यूज करेक्ट ग्रामर, इट इज़ वेरी नेसेसरी. ग्रामर करेक्ट होना चाहिए. इफ द ग्रामर इज इनकरेक्ट देन इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. और जो अच्छे जर्नल्स हैं वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं पेपर को, अगर ग्रामर सही नहीं है तो. मतलब उसको रिकंसिडर करते हैं लेकिन आफ्टर वी हैव करेक्टेड द ग्रामर. तो यूज करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है. पास्ट टेंस यूज करना है कि प्रेजेंट टेंस यूज करना है, कि पास्ट कंटिन्यूस यूज करना है. जनरली हम लोग जब रिसर्च पेपर बनाते हैं तो उसमें जो लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट होता है वो पास्ट टेंस में रहना चाहिए, वो प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए. ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं वो आप जो है ग्रामर के बारे में जब आप रीड करेंगे सेंटेंस मेकिंग वगैरह के बारे में तो आपको इसका आइडिया ज़्यादा अच्छा रहेगा.
So I will suggest that those who are weak in English grammar, please join some course online for correcting your grammar, for making your English grammar perfect. कम्युनिकेशन इंग्लिश को पढ़ना ज़रूरी है, उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है. वी शुड अवॉइड एनी रैम्पेंट स्पेकुलेशन. सो रैम्पेंट स्पेशली स्पेकुलेशन का मतलब क्या है कि बोस्टिंग कर देना, बहुत बड़ा बड़ा वो कर देना, क्लेम्स कर देना, बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर देना. लेकिन वो क्लेम्स फिर जाके बाद में जब उसको कोई एक्चुअली उस पर काम करता है तो उसको पता लगता है कि हमने जो क्लेम्स किए थे वो सही नहीं बैठ रहे हैं. सो क्लेम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो क्लेम है वो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए, खूब ज़्यादा अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर से फॉर एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड अ मॉडल दैट कैन प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट डेटा फॉर द नेक्स्ट डे. सो अभी तक का डेटा अगर हम उसको दें तो नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन करके दे. तो मैं जो है ऐसा उसमें अपने कंक्लूजन में ये नहीं लिख दूं, ऐसे क्लेम ना कर दूं कि जो है इस मॉडल को जो है मैं वी कैन यूज दिस मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग ईयरली और मंथली फोरकास्ट ऑफ स्टॉक्स. तो वो बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा, बिकॉज डेली प्रेडिक्शन करना और मंथली प्रेडिक्शन करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है. उसमें डेटा का फ़र्क हो जाता है, उसमें उसकी प्रोसेसिंग का फ़र्क हो जाता है. बिकॉज व्हेन वी से दैट द टाइम स्पैन इज़ लार्जर, तो उसमें वेरिएशंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू नेक्स्ट डे प्रेडिक्शन. सो एक एग्जांपल हुआ इस टाइप से, जो है हम जब भी कुछ स्पेकुलेशन करते हैं या कुछ क्लेम्स करते हैं तो उसको थोड़ा रियलिस्टिक रखना है. बहुत ज़्यादा जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक या बहुत ह्यूज काइंड ऑफ क्लेम्स नहीं रखना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक रखना है. सो रिटन कम्युनिकेशन में ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे. शुड बी क्लियर, लॉजिकल, फैक्चुअल, करेक्ट ग्रामर, करेक्ट सेंटेंस, और जो स्पेकुलेशन है वो रियलिस्टिक होना चाहिए. सो द साइंटिफिक कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो कैसा है. सो फर्स्ट वी डिफाइन द क्वेश्चन. So that is known as a research question. We define the question that we are going to answer in our literature. So that question should be very clear and should be very much relevant to what we are doing. We are going to explain in our article. Gather information and resources. So authentic information और resource gather करना है from authentic sources. उसी का basis पे हमको बाकी के कंटेंट को हमको बनाना है. Formulate hypothesis. सो ऑलरेडी एस्टैब्लिश जो हाइपोथेसिस हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश जो फैक्ट्स हैं, उनको यूज करके हम अपना हाइपोथेसिस बनाएं. सो दैट विल बी मोर रियलिस्टिक. परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड कलेक्ट डेटा. सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग एन हाइपोथेसिस, we should also try to create a model. That model will be used to apply the data. The data will be applied to the model, and the model will be used to predict something or to forecast something. सो एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. एक्सपेरिमेंटेशन करना और उसका रिजल्ट्स लाना, उसको टैबुलेट करना. ठीक. और जो मॉडल पे हम डेटा अप्लाई करेंगे उसको कलेक्शन भी जो है ऑथेंटिक सोर्स से करना चाहिए. गवर्नमेंट का सोर्सेज होने चाहिए, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करें. या तो आप रियल ऑब्जर्वेशंस करें, एक्चुअल. जैसे अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो एक्चुअल मशीन्स पे अगर वर्क कर रहे हैं तो मशीन्स का ऑब्जर्वेशन एक्चुअली रह के वहीं खड़े होके कलेक्ट करें और उसको फिर अपने मॉडल पे अप्लाई करें. तो उस टाइप से जो है कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी वेरी ऑथेंटिक, वेरी रियलिस्टिक. कोई भी ऐसा डेटा यूज नहीं करना है जो इमेजिनरी हो. हमेशा रियलिस्टिक डेटा पे ही काम करना है. एंड वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सो दैट वी कैन गिव सम आउटपुट्स, एंड दैट आउटपुट दोज आउटपुट्स कैन बी कंपेयर्ड विद अदर प्रीवियसली डन एक्सपेरिमेंट्स. सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है जिसको करना ज़रूरी होता है. इट टेक्स टाइम, but that is a part of the research. Then comes analysis of the data. So after we have achieved the output, then we have to analyze the output. So depending up, we should also know the statistical analysis of the data that we are using. Statistically हमको उसको analyze करना चाहिए, जिससे हमको डेटा की प्रॉपर्टीज पता लग जाए जो डेटा हम यूज कर रहे हैं. उसके बाद जब डेट आउटपुट मिलेगा फिर आउटपुट को एनालाइज करें, एनालिसिस करके देखें कि वो आउटपुट जो है वो उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है. Then we interpret and draw conclusions for new hypothesis from the data analysis, output data analysis.
तो जो आउटपुट आ रहा है उस पर्टिकुलर आउटपुट को एनालाइज करके फिर उसको इंटरप्रेट करना, यूजिंग सम फैक्ट्स उसको इंटरप्रेट कर लेना, और उसके बाद फिर कुछ कंक्लूजन्स निकालना उसमें से, इन डेप्थ एनालिसिस करके, इंसाइट्स जिसको बोलते हैं, इंसाइट्स आप निकालें इन डेप्थ एनालिसिस करके तो आप कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे। और उससे फिर पता लगेगा कि हमने जो हाइपोथेसिस आपने जो प्रपोज किया था उसको वो सपोर्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद जब ये हाइपोथेसिस हमारा प्रूव हो जाता है कि हमने सही हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया था, उसके बाद देन वी पब्लिश और कम्युनिकेट द रिजल्ट्स। देन ओनली वी पब्लिश और कम्युनिकेट द रिजल्ट्स। सो जो रिजल्ट्स हम दिखाएंगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअली प्रैक्टिकली डन रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक कम्युनिकेशन का पार्ट है। सो पब्लिश होने से पहले ये जो जो सातवां पॉइंट है, पब्लिश होने से पहले ये 6 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही सातवां पॉइंट आता है, दैट इज द कम्युनिकेशन पार्ट। So common modes of scientific communication is written communication, oral communication, and visual communication. So when we are performing written communication, it can be in the form of email, resume, report, journal article, review article, book. So इसका यूज करके जो है हम लोग written communication करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन में लेक्चर, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू। सो यहाँ पे आप जो है प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें हम लोग का जो काम उसी में ज़्यादा है, टू प्रेजेंट अवर रिसर्च एंड टू फेस द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। सो इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल और बुक जो है और रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें जो है रिटर्न कम्युनिकेशन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और विजुअल कम्युनिकेशन में पोस्टर सेशन, जिसको पोस्टर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, लेक्चर, प्रेजेंटेशन। सो विजुअल कम्युनिकेशन में जो आता है दैट इज मोर बेस्ड ऑन डायग्राम्स, मोर बेस्ड ऑन इमेजेस, फिगर्स, ग्राफ्स, इस पे ज़्यादा उसमें ध्यान दिया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन में भी रहता है, लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन इज मोर बेस्ड ऑन विजुअल कंपोनेंट्स। विजुअल कंपोनेंट्स में वीडियो, सर ऑडियो। जी जी हाँ। सर ओरल कम्युनिकेशन में प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू दोनों में डिफरेंस क्या है सर? प्रेजेंटेशन में एक्चुअली क्या होता है कि वी फर्स्ट प्रेजेंट अवर एंटायर पेपर या प्रेजेंट अवर एंटायर आइडिया। After we have presented our entire idea, then the interview process will start, or then the discussion process actually starts, क्वेश्चन आंसर सेशन। इंटरव्यू में क्या होता है कि डायरेक्टली जो है वो हम पहले से ही इंटरव्यूअर को अपना डिटेल्स दे देते हैं कि दैट दिस इज व्हाट आई हैव डन, और वो इंटरव्यूअर उसको पढ़ लेता है पहले से। उसके बाद सीधे वो क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है। तो प्रेजेंटेशन ओके में क्या है कि वी प्रेजेंट इट फर्स्ट, देन द क्वेश्चन स्टार्ट्स। इंटरव्यू में क्या है कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। ओके सर, ओके। हाँ, तो इट्स अ वेरी बेसिक डिफरेंस इसमें, लेकिन इंटेंशन वही रहता है कि उसके इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो इंटरव्यूअर है। जो जो इंटरव्यू पैनल होता है वो इन डेप्थ एनालिसिस करता है कि हमने जो काम किया है वो एक्चुअल में किया है कि नहीं। एक तो ये चीज़ देखते हैं हमने ही किया है कि नहीं, और दूसरा ये है कि हमको मालूम है कि नहीं हमने क्या किया है, और वी कैन बी डिफेंड अवर आइडिया। So if we are successfully defending our idea, that means our article gets accepted or our research project gets accepted. ठीक। सो अब ऑरल कम्युनिकेशन के साथ विजुअल कम्युनिकेशन भी हम लोग करते हैं, जिसमें कि जनरली जो विजुअल जो कंपोनेंट्स हैं, ग्राफ्स, फिगर्स, इमेजेस, वीडियोस, ये सब को यूज करके हम जो है प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। सो रिटन, ओरल एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ये तीन बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर साइंटिफिक कम्युनिकेशन, दैट इज साइंटिफिक पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन में आते हैं स्कॉलरली और पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स। ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। स्कॉलरली और पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स मीन्स समटाइम्स कॉल्ड एज रेफरीड आर्टिकल्स। प्राइमरी रिसर्च रिसोर्सेज में इनको इंक्लूड किया जाता है। सो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आर दोज आर्टिकल्स विच आर बीइंग रिव्यूड बाय द पीयर्स। ठीक। पीयर्स का मतलब क्या होगा कि वो साइंटिफिक कम्युनिटी में उसको फ्लोट कर दिया जाता है, और वो साइंटिफिक कम्युनिटी में सब लोग अपना जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना अपना व्यू देते हैं उस आर्टिकल के बारे में। तो पीयर रिव्यूड आर्टिकल जो होते हैं वो एक तरीके के पैनल के थ्रू जाता है। हमारा जो भी आर्टिकल होगा वो पैनल के थ्रू जाएगा, और पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो है हमारे आर्टिकल को पढ़ के फिर अपने अपने व्यूज देते हैं। तो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स कहते हैं उनको। वो काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी रेस्पेक्टेड होता है आर्टिकल। अगर उसमें से
हमारा आर्टिकल अगर एक्सेप्ट हुआ है इसका मतलब आवर आर्टिकल इज गुड। फिर ओरिजिनल रिसर्च जो होता है दैट इज रिटन बाय फॉर स्कॉलरली एक्सपर्ट्स एंड पब्लिश इन स्कॉलरली जर्नल्स। सो ओरिजिनल रिसर्च नेचुरली हम जो कर रहे हैं वो ओरिजिनल रिसर्च ही है जिसको हमको प्रेजेंट करना रहता है और उसको पब्लिश करना रहता है। Researchers who wish to publish scholarly articles must endure a rigorous editorial procedure called peer review। जैसे अभी मैंने कहा कि peer review जो होता है वो एक्सपर्ट्स का कम्युनिटी मिल के उसको रिव्यू करते हैं। सब लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे उसको रिव्यू करते हैं एंड द कम्युनिटी द एंटायर कमिटी गिव्स ए verdict. If they all are the majority of the verdict is positive, then our article gets accepted. If the majority is not positive, then our article gets rejected. सो पीयर रिव्यूड जो होता है वो बहुत ही टफ होता है और अच्छा होता है। उससे क्या होता है हमारा टेस्टिंग हो जाता है हमारे आर्टिकल का। और अगर पीयर रिव्यूड अगर होने के बाद अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है दैट मीन्स हमारे आर्टिकल में काफी दम है। सो इट इज गुड बट टफ है लेकिन जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी होता है। रिव्यू आर्टिकल्स भी एक तरीके एक टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं। तो रिव्यू आर्टिकल्स जैसे अभी हम लास्ट उसमें डिस्कस कर रहे थे रिव्यू आर्टिकल्स जो है वो रिव्यू पेपर्स हम जो क्रिएट करते हैं दैट इज साइंटिफिक रिव्यू जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने उसका कुछ बैकग्राउंड स्टडी किया। बैकग्राउंड स्टडी करने के बाद फिर हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। तो रिव्यू आर्टिकल्स रिटन बाय एंड फॉर स्कॉलरली एक्सपर्ट्स सीक टू क्रिटिकली सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन ए टॉपिक। तो क्रिटिकली सिंथेसाइज करना मतलब जो ऑलरेडी हो चुका रिसर्च है उसको इन डेप्थ वे में समझना और फिर उनसे इंसाइट्स निकाल के हमारा एक उसको वो करना, हमारा एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिएट करना, दैट इज रिव्यू आर्टिकल। वो बहुत नेसेसरी है। ये प्रैक्टिस आप लोग को अभी करना ही पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट पेपर दैट यू हैव टू प्रेजेंट और फर्स्ट पेपर दैट यू हैव टू पब्लिश शुड बी अ रिव्यू आर्टिकल। दे आर particularly valued in areas where a lot of research is being done at a rapid pace, such as in medicine, physics, engineering, मैनेजमेंट। सब जगह में आजकल जो है काफ़ी रैपिड रिसर्च चल रहा है। सो वहाँ पे आपको यू विल गेट एम्पल बैकग्राउंड ऑफ द एंटायर एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन इन द रिसर्च एरियाज। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप चॉइस करके उस पर फिर पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके जो ऑलरेडी काम हो चुका है उस पर एक रिव्यू तैयार करें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Nevertheless, review articles such as those published in SCI और Scopus Index journals, ठीक है। SCI मतलब साइंस साइटेशन इंडेक्स और स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स, ये बहुत स्टैंडर्ड जर्नल्स कैटेगरी ऑफ जर्नल्स होते हैं और हाईली रिगार्डेड विद सम अंडरगोइंग पीयर रिव्यू बिकॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट उसका रिव्यू प्रोसेस होता है और बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी के पेपर्स ही उसमें पब्लिश होते हैं SCI और स्कोपस में। So the journals or the publisher website should explain any editorial policies। तो उसके आप खैर एडिटोरियल पॉलिसी जो आप वेबसाइट पे आपको समझ में आ जाएगा लेकिन इन पे हमारा रिव्यू आर्टिकल एक्सेप्ट होना चाहिए SCI और स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में, तब जाके उसका वैल्यू होता है। सो रिव्यू आर्टिकल्स आर वेरी नेसेसरी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। then we can if we are then after we have performed a review, a very in-depth review, that particular review if it is very extensive, अगर वो रिव्यू एक्सटेंसिव बहुत है देन वी कैन पब्लिश इट एज ए बुक चैप्टर। एक किसी बुक चैप्टर के जैसे उसको हम पब्लिश कर सकते हैं। या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो है अगर हमने कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन तक कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं और कुछ टेक्निक्स यूज किए हैं तो उनको यूज करके एक कंपाइल करके हम एक बुक भी पब्लिश कर सकते हैं ऑफ आवर रिसर्च आइडियाज। लेकिन दैट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब वो जो है आपने कई सालों से अगर उसमें कई जैसे 8-10 साल से आप रिसर्च कर रहे हैं और बहुत नई नई चीज़ें आपने उसमें फाइंड आउट की हैं तो उनका पूरा एक इकट्ठा करके आपका जो ऑब्जर्वेशन है उनको यूज करके आप एक बुक पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के फेज में आप अपने जो एक तो है लिटरेचर रिव्यू जो आपने अगर एक्सटेंसिवली किया है, जैसे आपने 100-200 पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू करके उसको बहुत अच्छे से कंपाइल करके उसको अगर बनाया है तो फिर आप एक बुक एक स्टैंडर्ड बुक में एक चैप्टर को पब्लिश कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किया हुआ है, काफी रिगरस एक्सपेरिमेंट्स करके आपने हाइपोथेसिस को प्रूव किया है तो उसका भी बेसिस पे एक चैप्टर आप लिख सकते हैं इन्हें स्टैंडर्ड बुक। वो भी बुक जो होता है वो भी दिस शुड बी पब्लिश बाय ए स्टैंडर्ड पब्लिशर। जैसे जो है वो स्प्रिंजर जो है वो
LNCS जिसको लेक्चर सीरीज जो स्प्रिंजर का होता है वो प्रिंट करते हैं इन लोग क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे। तो उसमें अगर पब्लिश कर पाए तो दैट इज वन ऑफ द वेरी बिग अचीवमेंट्स व्हेन वी आर परफॉर्मिंग अवर रिसर्च। So books bring together a large segment of what is known on a topic and can help researchers contextualize an idea or experiment within a larger body of knowledge. Books can be written for different audiences and for different purposes, including encyclopedias that seek to explain complex topics to non-experts and textbooks that aim to educate. सो बुक्स जो है जैसे क्योंकि हम लोग अभी रिसर्च पे काम कर रहे हैं तो हमारे रिसर्च ओरिएंटेड हमको जो है पब्लिशिंग के बारे में सोचना है। सो बुक आर्टिकल हम छाप सकते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड बुक में वी कैन राइट अ चैप्टर, लेकिन वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है तभी जाके वो प्रिंट होगा, क्योंकि हम प्रिंट भी वहीं पे कराएंगे जिसका वैल्यू है। ये तो हमारे इतना नॉलेज और इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। Then another scientific type of communication is conference papers and proceedings. So this is again a collection of the proceedings are collection of the scientific papers that are published in conferences. So वो एक वो प्रेस्टिजियस होता है। अगर हम कॉन्फ्रेंस हमारा प्रेस्टिजियस है, जैसे अब ध्यान में ये रखना है कि अगर आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं दैट शुड बी एन IEEE कॉन्फ्रेंस, और उसके डिटेल्स में जाके आपको ज़रूर देखना है कि वो जो IEEE का कॉन्फ्रेंस पे जहाँ पे आप अपने पेपर को पब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं, दोज पेपर्स विच आर पब्लिश एंड प्रेजेंटेड इन दैट IEEE कॉन्फ्रेंस शुड बी कंपाइल्ड एंड द प्रोसीडिंग्स शुड बी पब्लिश्ड इन IEEE जर्नल। IEEE के जर्नल में जो SCI या SCI अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक। सो IEEE के जर्नल्स जो SCI अप्रूव्ड हैं वहीं पे आपके प्रोसीडिंग्स जो है वो प्रिंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही उस टाइप के IEEE कॉन्फ्रेंस में आप अपने पेपर को प्रेजेंट करें। तो उस टाइप के लेवल मेंटेन करना है। ऐसे ही किसी कॉन्फ्रेंस पे जाके पब्लिश नहीं करना है पेपर को, उससे आपका एफर्ट वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। So conference papers and proceedings are typically written by and for scholarly experts and can provide a glimpse into cutting edge research. So when we are trying to present our paper in a conference, we should be confident that we are presenting something which is unique or which is cutting edge. Okay, it is latest. Sometimes scholars will present at conference on their research before or soon after a study has been published. So when you have published, confidently आपने एक publish कर चुके हैं, तो जैसे आपने अगर अपना literature सर्वे को अगर किया है publish, तो आप literature सर्वे को भी आप conference में present कर सकते हैं। Sometimes these presentations are collected and published in the form of a conference paper, individual or proceedings as a collection of conference papers. सो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको दो मेन टाइप का पेपर बनाना है। एक हमको रिसर्च पेपर बनाना है और एक एक्सपेरिमेंट वाला पेपर बनाना है। सर्वे पेपर बनाना है और एक एक्सपेरिमेंट वाला रिसर्च पेपर बनाना है। हमारा जो सर्वे पेपर होगा वो सर्वे ओरिएंटेड होगा, दैट इज ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड होगा, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल पेपर होगा जिसमें हम लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके हमारे हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं, वो वाला एक पेपर होगा। ये दो मेजर पेपर्स हमको बनाने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अपने नॉलेज को गैदर करेंगे और अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखना है। देन इज द कैटेगरी ऑफ वाइट पेपर्स। वाइट पेपर्स आर ऑफन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। सो हम वाइट पेपर्स को रीड करते हैं, उसमें से फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, वो रियल वर्ल्ड जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बेसिस पे बनाया जाता है। सो इट द वाइट पेपर्स आर नथिंग बट ऑब्जर्वेशंस। सो वाइट पेपर्स आर ऑफन ऑथर्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, तो काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहता है। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक एग्जांपल है। ऐसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी सारे एजेंसीज हैं जो वाइट पेपर्स पब्लिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, जैसे IBM एक कंपनी जो एक्टिवली रिसर्च पब्लिश करते हैं, और द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिटन बाय ऑडियंस एक्सटर्नल टू देमसेल्व्स। दे ऑफन टेक फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट फॉर्मेट में रहेगा, और अदर डॉक्यूमेंटेशन दैट सीक्स टू एक्सप्लेन अ पॉलिसी और बेसिस ऑफ ए पोजीशन। तो जो करंट अफेयर्स चलते हैं, जो भी हमारे जैसे कंट्री का करंट अफेयर्स चल रहा है या वर्ल्ड का करंट अफेयर्स चल रहा है, जनरली कंट्री से रिलेटेड होता है, तो उसके बेसिस पे वाइट पेपर्स को पढ़ने से हमको लेटेस्ट क्या
चल रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे कंट्री में, उसको हमको ऑब्जर्वेशन मिलता है। इससे हम इंस्पिरेशन निकालते हैं कि हमको किस पे वर्क करना है, कौन सा डेटा लेके वर्क करना है। तो इससे हमको जो है इंस्पिरेशन मिलता है। और ये जो है लेटेस्ट होगा, डिसर्टेशन एंड थीसिस। सो डिसर्टेशन एंड थीसिस जो है वो जो अभी आप लास्ट में अपने डॉक्टरल डिग्री पे जो है उसको फोकस करेंगे। आपने ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री पे किया होगा इस चीज़ को, डिसर्टेशन थीसिस। तो देयर आर एक्सटेंसिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय स्टूडेंट्स वर्किंग टुवर्ड्स एन अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री। Since advisors and committee members thoroughly review these work, so the process differs significantly from that of peer review. ये जो है एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट जो है इसको बहुत अच्छे से कीनली इसको एनालाइज करते हैं। सो इसका एक वैल्यू रहता है। डिसर्टेशंस एंड थीसिस आर इंक्रीजिंगली अवेलेबल ऑनलाइन थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज लाइक शोध गंगा। सो इन इंडिया वी हैव शोध गंगा। सो ये जो HTTPS कोलॉन शोध गंगा .inflipnet.ac.in है, ये मैं आपको अभी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको आप जो है, मैं अभी इसको कॉपी करके दे रहा हूँ। सो इसको आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। अभी ऑनलाइन जाइए, मैं चैट में इसको अवेलेबल करा रहा हूँ। आई हैव कॉपीड द लिंक इन द चैट। आप इसको इस लिंक को क्लिक कर लीजिए। सो शोध गंगा को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये ऐसे दिखने लगेगा। होपफुली सबको ये दिख रहा है, एक बार सब लोग ट्राई करके देख लीजिए। तो शोध यस गंगा, सर। यस सर, दिख रहा है। जी जी, शोध गंगा जो है ये आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो थीसिस सबका पब्लिश होता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपके हिसाब से कहाँ पे आपको जाना है, एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। बाकी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। यू ऑल हैव डन, होपफुली पहले भी किया होगा आपने। फिर भी एक जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस में बता देता हूँ। शोध गंगा पे जाएंगे, ये वेबसाइट खुल चुका है। सर्च एंड ब्राउज पे जाएंगे, या तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सर्च थीसिस इनटू शोध गंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक। तो सर्च एंड ब्राउज पे जाने के बाद आप जो है, जैसे आप यूनिवर्सिटीज एंड डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। ठीक, अपलोड डेट पे जा सकते हैं, रिसर्च गाइड पे जा सकते हैं, टाइटल और कीवर्ड पे जा सकते हैं। तो जैसे हमको अगर CSV2 का अगर हमको पब्लिश किया हुआ रिसर्च पेपर्स देखने हैं, तो हम उसको क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटीज एंड डिपार्टमेंट में जो है मैंने क्लिक किया है अभी। अभी इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इससे इसे जाते हैं हम। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये मेरे को यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एडवांस सर्च में हम क्लिक कर रहे हैं। देखिए यहीं पे सर्च थीसिस इनटू शोध गंगा के नीचे में आप ऑब्जर्व करेंगे जिस डिस्प्ले जहाँ पे मेरे कर्सर है, एडवांस सर्च, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे डिटेल मिलेगा कि आपको जो है कौन से यूनिवर्सिटी का आपको सर्च करना है। जैसे आप ऑल ऑफ शोध गंगा पे क्लिक कर सकते हैं, या तो आपको अगर लगता है कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आपको देखना है। जैसे मैं CSV2 को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख के आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिख के आया है, छत्तीसगढ़ स्वामी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं जैसे यहाँ पे टाइटल, कीवर्ड, रिसर्च गाइड, कीवर्ड, डेट, रिसर्चर का नेम, डेट, कंप्लीटेड लैंग्वेज। इस पे हम टाइटल को, मैं हम टाइटल पे सर्च कर लेते हैं। जैसे सर स्क्रीन दिख नहीं रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। दिख रहा है सर? विजिबल सर। सर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? Yes, sir, it's visible. सर मेरे में नहीं दिखाई दे रहा सर, मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ सर। हाँ, वो कई बार क्या है ना, थोड़ा नेट स्लो होने के कारण भी कई बार होता है। ठीक, सो यहाँ पे जैसे टाइटल है, टाइटल पे मैं सर्च कर रहा हूँ। टाइटल में आप जैसे आपने
अपने जो भी आपके इंटरेस्ट का टाइटल है, तो मैं यहाँ पे फजी लॉजिक, देखिए मैं फजी टाइप करते ही मुझे बहुत कुछ मिल गया यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे फजी रूल बेस्ड नोवेल अप्रोच टू स्पैम फिल्टरिंग, ऐसे मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फजी से रिलेटेड ये सब चीज़ें हमको दिख रही हैं। सो यहाँ पे, या मैं इसको ऐसे सर ये CSVTU के सारे टॉपिक्स हैं? नहीं, हाँ, अभी अभी जो हम लोग यहाँ पे जो सर्च करेंगे, ये CSVTU के मतलब के दायरे में सर्च होगा, ये CSVTU के दायरे में ओके। सर्च होगा। ठीक है। जैसे एक्सपर्ट सिस्टम मुझे सर्च करना है, ठीक है, आई वांट टू सर्च सम एक्सपर्ट सिस्टम रिलेटेड, मुझे रिसर्च को सर्च करना है, तो एक्सपर्ट सिस्टम से यहाँ पे से एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट फॉर रिट्रीवल ऑफ मिसिंग डेटा थ्रू सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, इसको मैंने क्लिक किया है। ठीक, इसको करने के बाद गो पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे गो पे क्लिक करने के बाद, हाँ, ये सब आ गए, ये सभी CSV2 के हैं। ठीक है, सभी CSV2 के ही पब्लिश पेपर्स हैं ये सब। 7 अक्टूबर भी लेटेस्ट जो है, ये 7 अक्टूबर का दिखा रहा है, 27 अक्टूबर है, नवंबर है। ठीक है, नवंबर अक्टूबर का सर ये ये, सारे रिसर्च पेपर हैं कि हाँ, ये थीसिस रिसर्च हैं? पेपर, ये थीसिस है, थीसिस, ओके, दिस आर ऑल थीसिस थीसिस। है ना? हाँ, शोध गंगा में हम थीसिस सर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर नहीं सर्च हो सकता सर इस साइड में? नहीं, शोध गंगा में हम जो है यहाँ पे सिर्फ थीसिस के लिए सर्च करेंगे, थीसिस। सर अगर हम रिसर्च पेपर सर्च करना चाहें तो? रिसर्च पेपर अगर सर्च करना है तो यहाँ पे हमको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके ओके। शोध गंगा जो है वो दैट इज टोटली मेंट फॉर दिस PhD थीसिस। ये देखिए यहाँ ओके पे सर, लिखा है, ओके। शोध गंगा इनफ्लिबनेट सेंटर प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स टू डिपॉजिट देयर PhD थीसिस एंड मेक इट अवेलेबल टू द एंटायर स्कॉलरली कम्युनिटी इन ओपन एक्सेस। ठीक है, तो ये ओके सर, PhD थीसिस के लिए स्पेशली बनाया गया है। ओके मैं सर। इसलिए इसको आपको बता रहा था क्योंकि आप सबको बनाना ही है, इसमें आपको पब्लिश भी करना पड़ेगा, अपलोड भी करना ही पड़ेगा। तो इस पे जो है आप जाके किसी भी एक, जैसे कोई भी एक में क्लिक कर देता हूँ। सर ये जो कोई लेटेस्ट होगा जिसने 7 अक्टूबर 2020 को किया है, ये इसने वही पैटर्न फॉलो किया होगा जो आपने बताया था UGC के अकॉर्डिंग होना चाहिए? हाँ हाँ, इसमें जो है देखिए, यहाँ पे देखिएगा, अभी जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया है, ये पूरा डिटेल बता रहा है, साइटेशन डिटेल्स बता रहा है। ठीक है, साइटेशन डिटेल जो है, ये बताने के बाद देखिएगा, यहाँ पे देखिए देखिए PDF फॉर्मेट में पूरा दिया हुआ है ना, पूरा थीसिस जो है वो PDF फॉर्मेट में टॉपिक वाइज दिया है, मतलब चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा आप जो है क्लिक करके, ओपन करके, व्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, सो इससे आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कैसे होना चाहिए, कैसे, जैसे रेफरेंसेस है, तो रेफरेंसेस को मैं एक बार सिर्फ क्लिक करके आपको बता दूं। ये देखिएगा, रेफरेंसेस ओपन हो गया, शेयर दिस टैप कर रहा हूँ, दिस इज रेफरेंसेस। ठीक, आप ऑब्जर्व करेंगे रेफरेंसेस सेक्शन को, देखिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा है, ए है, उसके बाद बी है। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस को आप ऑब्जर्व करिए, सरनेम दिया है, उसके बाद एब्रीविएशन दिया है, उसका नेम, कॉमा लगा है। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी के ऑथर्स का नेम, फिर ईयर लिखा है। ठीक, ईयर लिखा है। उसके बाद इटैलिसाइज फॉर्मेट में इसका जो है वो इसने टाइटल लिखा है। उसके बाद फिर जर्नल का नेम है, वॉल्यूम नंबर, एंड दैट उसका जो है, जो भी रहता है उसका मैं भूल गया। उसके बाद फिर पेज नंबर है। सो ये अपना APA फॉर्मेट या फिर अपना जो है MLA फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस सेक्शन आपको दिख रहा है, तो इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे, इसमें करीबन देखिए, करीबन 100 कितना, 150 पेपर्स, 156 पेपर्स जो है वो रेफरेंसेस में है। इसका मतलब 156 पेपर्स का पूरा साइटेशन इसमें दिया होगा। ठीक है, देखिए
इसमें जो है ना लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट में मैं आपको बता दूं, चैप्टर 1 जनरली इज लिटरेचर रिव्यू। नहीं, इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 इज लिटरेचर रिव्यू। यस, तो देखिए यहाँ पे लैब चैप्टर 2 है, जो लिटरेचर रिव्यू वाला सेक्शन है चैप्टर 2 है। अब इसमें देखिएगा जो रेफरेंसेस कैसे इसने लिखे हैं, साइटेशंस कैसे दिया है, इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए। क्लोवर ब्रैकेट में 1950, रूक ब्रैकेट में 1987, रूक एंड गार्डनर ब्रैकेट में 19, ये जो है अपना एपीए स्टाइल में रेफरेंसेस दिए हुए हैं, साइटेशंस दिए हैं, ये दीज आर साइटेशंस, ठीक है, इंटेक्स्ट साइटेशंस हैं। ये पूरा जो है साइटेशंस भरा पड़ा रहेगा इसमें, लिटरेचर रिव्यू में हर जगह देखिए साइटेशंस हैं दिए हुए रहते हैं। स्टर्न 1962, तो ऐसे करके साइटेशंस दिए हैं, ठीक। यहाँ पे देखिएगा इसमें साइटेशन दिया है, टेरमिज एटाल लिखा है, एटाल मतलब मोर देन 2 या 3 इसमें होंगे, ऑथर्स होंगे। सो दिस इज हाउ एक स्टैंडर्ड वे में हम इसको बनाते हैं। सो होपफुली ये आप लोग को जो है काफ़ी अच्छा मदद करेगा। आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना मटेरियल बनाना शुरू करें फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स, तो आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक। सर साइटेशन और उसका आर्थर का नाम डाल दे तो पब्लिकेशन का नाम उसमें नहीं डालना पड़ेगा ना, बस नहीं उतना ही नहीं नहीं लिखना नहीं नहीं, पब्लिकेशन का नाम रेफरेंसेस में आएगा लास्ट में। रेफरेंसेस ओके वाला सर, सेक्शन होता है ना, ये लास्ट में देखिएगा, ये रेफरेंसेस वाला सेक्शन है, इसमें पूरा डिटेल रहेगा, या राइट सर, है ना। जी सर। सर ये थीसिस का जो समराइज वे है उसी को हम रिसर्च पेपर बोल सकते हैं क्या? हाँ, अब इसमें देखिए, हाँ अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप इसके चैप्टर्स को ऑब्जर्व करिए। जैसे अभी ये मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर है आपका लिटरेचर रिव्यू, अभी जैसे मैं इसको आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, दिस इज अ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। सो एक पेपर आपका लिटरेचर रिव्यू का एज ए सर्वे पेपर आपको प्रेजेंट कर, मतलब प्रिंट करना है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं चैप्टर 2 का जो कंटेंट होगा ना, इस कंटेंट का मिलता जुलता प्रारूप आपको बनाना है, या इसी कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं टू पब्लिश योर फर्स्ट पेपर विच इज द सर्वे पेपर। आप सर्वे पेपर बनाएंगे तो आपका जो सर्वे पेपर बनेगा, जो एससीआई में अप्रूव हो चुका है, वो आप चैप्टर 2 में डाल देंगे पूरा, ठीक है। तो दैट विल कम अंडर योर लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, जो आपने सर्वे पेपर बनाया था, ठीक है। तो इस टाइप से आप प्लान करके अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको अपना एक रिव्यू पेपर बनाना है, वो आप बनाना ही पड़ेगा, मतलब उसको वो जो है इट इज मतलब एक तरीके से मैंडेटरी समझिए। तो सर हाँ, उसमें भी जी, सर आपने बताया था कि हमें 10 15 20 रिसर्च पेपर को हाँ, स्टडी करके उसके जी, बाद उसको हम अपना एक रिसर्च पेपर लिखेंगे नया। हाँ, 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 तो उसी 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 जो नया रिसर्च पेपर है उसी के हाँ, कंटेंट को हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डालेंगे ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसमें डालेंगे, प्लस इसमें वो भी चीजें डालेंगे जो हमने और भी पढ़ा हो, और भी जो हमने ओके पढ़ा हो उसके बारे में भी डालेंगे। जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, इसका रेफरेंसेस में 150 156 रिसर्च पेपर्स लिखा है, इसका मतलब ये पूरे लिटरेचर रिव्यू में 156 साइटेशंस होंगे, ठीक। सो वो तो बहुत डिटेल में हो गया, उतना बड़ा पेपर तो नहीं बनाएंगे ना आप। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कितने पेजेस का है ये, इसको अगर ऑब्जर्व करें, पेज नंबर ये 32 पेजेस का है ये, दिस इज ऑफ 32 पेजेस। तो 32 पेजेस का आर्टिकल नहीं बनता है, आपका आर्टिकल मैक्सिमम 3 या 4 पेज का बनेगा। तो आपका जो लिटरेचर रिव्यू आपने किया था उसको आपको कंसाइज करके एक एक पेपर बनाना पड़ेगा 4 पेज का या 3 पेज का, जो दैट विल बी योर पेपर ऑफ दैट इज सर्वे पेपर, ठीक है। सर्वे पेपर बनाएंगे, लिटरेचर सर्वे पेपर जिसको बोलते हैं, या रिव्यू पेपर बनाएंगे, जो आप एक स्टैंडर्डाइज जर्नल में पब्लिश करेंगे, और उसके कंटेंट को फिर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ऐड कर देंगे, ये वाले चैप्टर में ऐड करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो मतलब मैं वही समझ रहा हूँ कि जैसे थीसिस का जो समरी है दैट इज रिसर्च पेपर ना सर, जैसे आप बोल रहे थे कि रिसर्च पेपर ज्यादा से ज्यादा 5 से 25 पेजेस का होना चाहिए। रिसर्च पेपर 5 पेजेस का होगा, 4 to 5 पेजेस, ज्यादा होता 4 नहीं to है। 5 पेजेस, तो हाँ, मतलब इसी का थीसिस का जो समरी है दैट इज रिसर्च पेपर। समरी नहीं है, समरी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि दो वो टाइप जो का पेपर, आपका दो जो टाइप का हमारा पेपर हम, रिसर्च पेपर रहेगा
उसी के चैप्टर बनते जाते हैं ना थीसिस में, तो जो हम पेपर हाँ पब्लिश कराते बिल्कुल हैं बिल्कुल। अगर जैसे चैप्टर बनते हैं। आपने अगर सोच लीजिए जो है जैसे अलग अलग फेजेस में अपने आप अपने पेपर को अपने रिसर्च को डेवलप किया है, तो उन फेजेस को लेके अगर आप 4-4 पेज का अगर आपके पास अगर मैटर है तो आप उसको पब्लिश Okay. कर सकते हैं एज ए ऐसे जर्नल पेपर। तो वो Okay, जो okay. आपने पब्लिश किया है उसको आप अपने चैप्टर में डाल दीजिए, आपका कंटेंट वैसे बना बनाया मिल जाएगा आपको दोबारा लिखना नहीं सर पड़ेगा। सर सपोज करिए सर, हमने 2010 से लिया, जी 2010 में हमने 5 रिसर्च पेपर सेलेक्ट किए, जी जी ऐसे हमने हर साल 2020 तक 5-5 रिसर्च पेपर सेलेक्ट कर लिए हाँ या हाँ 10 रिसर्च कर लिए। फिर बिल्कुल उसको हम ईयर वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2010 में हमने ये रिसर्च पेपर में ये चीज देखी, फिर हाँ हाँ 2011 में ये चीज देखी, उसी हाँ चीज को हम अपनी थीसिस में डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जब भी हम रिव्यू करते हैं ना तो हमको अपना कुछ उसमें इनपुट देना पड़ता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखने से नहीं चलेगा। ऑब्जर्वेशन लिखने से नहीं चलेगा, हमको उसको फिर एनालिसिस भी करके बताना पड़ेगा कि हमने इसमें से ये एनालाइज किया। तो जनरली क्या होता है, जैसे इसमें मैं बताऊं यहाँ पे लास्ट में जनरली हम जो है, ये देखिए यहाँ पे रिसर्च गैप दिख रहा है। ये रिसर्च गैप। हाँ हाँ, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हमने फाइंड आउट किया कि ये सब पढ़ने के बाद, ये 150 पेपर पढ़ने के बाद हमको लगा कि एक रिसर्च गैप है, और ये रिसर्च ओके। गैप है, और इस रिसर्च गैप को हम क्या कर रहे हैं अपने थीसिस में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च गैप जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें ये तो सर एक पैराग्राफी टाइप का है, हाँ ये 2-3 पेज का भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये आपका ऑब्जर्वेशन है ना, ये ऐसा ओके ऑब्जर्वेशन है सर। जो किसी ने नहीं किया है, वो आपने सिर्फ किया है। ओके सर। हाँ हाँ, आपका मतलब हम यूनिक प्रूव कर सकते हैं, हम हाँ प्रूव कर सकते हैं कि इस साल में जो रिसर्च हुई है उसमें हाँ ये गैप रह गया और ये बिल्कुल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल जो बिल्कुल सही। इस गैप को फुलफिल कर रहा है। करेक्ट करेक्ट, वही आपका रिसर्च का बेसिस बन जाएगा। हाँ ओके सर। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ना कि शुरुआत में हमेशा एक रिव्यू पेपर बनाइए। रिव्यू पेपर बनाने से क्या होता है कि हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं जो लेटेस्ट हुआ है और जो हो चुका है, तो उससे हमको फिर आइडिया मिल जाता है कि आगे क्या कर सकते हैं, तो वो रिसर्च गैप हमको समझ में आने लगता है। ठीक है, और इसी से आपका रिसर्च क्वेश्चंस भी निकल के आएगा। रिसर्च क्वेश्चंस जैसे आपके सामने आ जाएंगे ना, आप फिर उनको एक एक करके सॉल्व करते जाइए, तो आपका पेपर्स भी बनते जाएंगे और आपके जो है वो आपका थीसिस भी बनते जाएगा साथ साथ। ठीक है। और हाँ लास्ट क्लास में जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, ये इसी पोर्शन के बारे में पूछ रहा था कि जैसे रिसर्च गैप में उन्हें अपना ओवरव्यू उन्होंने डाला है, जी जी तो जी। ये पैराग्राफ्स में नहीं आ जाएगा ना उसमें? नहीं नहीं नहीं, वो प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, वो तो आपका ऑब्जर्वेशन है ना जो किसी और ने नहीं हाँ। किया ना, जी वो तो जी जी यूनिक सर, यूनिक ऑब्जर्वेशन है ना आपका। जी 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 यही पूछ रहा था मैं लास्ट हाँ क्लास हाँ में। हाँ, वो आपका यूनिक ऑब्जर्वेशन है। आपने एक्चुअली क्या है, पेपर को इन डेप्थ एनालिसिस किया, इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद आपने वो चीज निकाल के देखा जो उस पेपर में नहीं दिया गया था, लेकिन या आपको राइट। समझ में आ गया कि हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें। जी सर, जी जी तो ये मेरा रिसर्च गाइडलाइन हो गया मेरे लिए, जो आगे मैं इसमें रिसर्च करूंगा, जी, राइट सर। है ना। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम लिटरेचर को पढ़ रहे हैं और उसमें से हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर लिटरेचर को लिखने वाले ने नजरअंदाज कर दिया हो, या उसको टाइम नहीं मिला हो उस बारे में सोचने के लिए, हम सोच लिए, तो हमने कुछ यूनिक चीज सोच लिया ना। राइट सर। हाँ, तो नेचुरली इट इज नॉट प्लैगराइज्ड, हमने क्रिएट किया है। एनीथिंग विच वी हैव क्रिएटेड बाय आवर ओन इज आवर ओन, वो आपका कॉपीराइट है उसमें। तो सर इसके बेसिस पे सर हम अपना एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं जो कोपस और CSI में हम पब्लिश कर सकें, एकदम 100% जो पब्लिश गैप होगा। रह जाए। हाँ, अगर वो हाँ सर। यूनिकली अगर एनालिसिस आपने किया है जो पहले नहीं हुआ है, तो हाँ हाँ। डेफिनेटली वो एनालिसिस जो है वो SCI या स्कोपस में डेफिनेटली पब्लिश हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि इनोवेशन को जो है सपोर्ट किया जाता है। तो आप कोई भी इनोवेटिव चीज अगर बताएंगे वो 100% एक्सेप्ट होता है। तो सर जो भी हम जो भी रिसर्च पेपर स्टडी करेंगे तो उसमें नेचुरली कुछ ना कुछ तो गैप्स तो मिलेगा ही। हाँ, वो अगर इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि 20 to 30 पेपर्स हमको पढ़ना है, हाँ हाँ
तो हम 20 to 30 पेपर्स के लिए अगर हम इन डेप्थ में जाएंगे तो नेचुरली हमको तो मिल जाएगा सर मिल जाएगा, गैप्स, बिल्कुल मिलेगा। तो हम उसको अलग से वी कैन पब्लिश इन SCI ऑल्सो। है, डेफिनेटली उसमें आपका सर यूनिक क्या कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए। हाँ सर ये हो सकता है सर कि हम SCI और कोपस में भी पब्लिश कर दें और UGC की केयर में भी पब्लिश कर दें, कि वो कर तीनों में से सकते हैं। किसी एक में करना पड़ेगा? नहीं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले SCI कर लीजिए, क्योंकि उसमें एक बार अगर आपका UGC में अगर पब्लिश हो गया तो SCI में पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि प्लेगरिज्म में आ जाएगा फिर। अगर SCI में करके फिर UGC में करें तो? हाँ, फिर कर सकते हैं, वैसे करके देख लीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई करना मॉडिफाई पड़ेगा, करके। एज इट इज नहीं कर सकते। वो फिर उसमें हो जाएगा कि ऑलरेडी पब्लिश है करके ऐसा आ जाएगा। तो आप टाइटल मॉडिफाई कर दीजिए उसका, जो है एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफाई कर दीजिए उसके, जो है कुछ उसका जो लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट है उसको मॉडिफाई कर दीजिए। बाकी मॉडल वही रहने दीजिए जो मॉडल आपने सोचा है। ओके ठीक है, तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर। या एक्सपेरिमेंट्स चेंज कर दीजिए, जो एक्सपेरिमेंट्स किया था अलग टाइप के डेटा पे एक्सपेरिमेंट कर दीजिए, रिजल्ट्स अलग आ ओके जाएंगे। सर हम जो रिसर्च पेपर देखेंगे सर वो कौन सी साइट पे देखेंगे? वो IEEE के वेबसाइट पे ही देखना है, स्कोपस के वेबसाइट में ही देखना है, जैसे एल्सवेयर। सर सर उसका हाँ एक लिंक दे देंगे क्या सर? हाँ हाँ, मैं अभी मतलब आपको वो उसका एक एड्रेस दे देंगे तो फिर हम उसको सर्च करेंगे। जी, और जैसे अभी तो मैं सर आपको मतलब सर इसमें ऐसा लिंक हो जाएगा कि अगर मैं रिसर्च पेपर अगर मैं देख रहा हूँ साइट में, तो मैं उसका थीसिस कैसे हुआ होगा उसमें जाके करेक्ट कर सकता हूँ क्या? वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट का जरूर मिल जाएगा, अपने इंटरेस्ट का नहीं जरूर मिल जाएगा। मतलब सपोजिंग कोई पर्सन ए है सबमिटेड सम रिसर्च पेपर, तो हाँ वो जो रिसर्च पेपर जो डाला है वो तो अपना जी थीसिस की रिसर्च डाला होगा ना सर, तो मैं वो उसने थीसिस क्या लिखा होगा उसका क्या कंटेंट था वो जानने के लिए मेरे को तो थीसिस तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो मैं हाँ रिसर्च गैप कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो थीसिस तो उसको पढ़ना। वो कैसे कनेक्टिविटी होगी सर? उसके लिए जो है मैंने अभी बताया ना, शोध गंगा है, जिससे कि अपन अपने रिसर्च आर्टिकल्स को, मतलब अपने थीसिस को पढ़ सकते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, उससे तो आइडिया ले रिसर्च सकते में हैं। वो मतलब उसमें कोई कोई एक जैसे एक यूनिक नंबर रहेगा क्या सर रिसर्च में, रिसर्च पेपर की ये इसी का ही थीसिस है करके? नहीं, वैसा फाइंड आउट करना मुश्किल है, वैसा मुश्किल है। क्योंकि क्योंकि मतलब पर्सन कैन सबमिट मोर देन वन रिसर्च पेपर, बट इट डजंट मीन कि उसका उसके थीसिस के ऊपर का ही उसी का ही रिसर्च है। हाँ, वो एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, एग्जैक्टली कहना सर इस मुश्किल है। केस में सर इस केस में हम थीसिस का और रिसर्च पेपर IEEE दोनों का अपना जो टॉपिक है उससे हम्म, रिलेटेड हम अपना रिसर्च पेपर और थीसिस दोनों निकाल लें तो हमें हेल्प मिल सकती है। हाँ हाँ, वो थोड़ा उसमें जो है हमको थोड़ा सा ना अपने हिसाब से कुछ मेहनत करके निकालनी पड़ेगी। सर कोपस का भी डाल दीजिए, सर कोपस का। हाँ, ये जो एल्सवेयर का मैंने दिया है ना अभी लिंक, वो स्कोपस हाँ इंडेक्स सर। होता है। एल्सवेयर में ओके जो जर्नल्स होते हैं वो स्कोपस इंडेक्स होते हैं। एक एक फ्रांसिस एंड टेलर करके भी होता है, ये भी बहुत ही रिनाउंड है, उसको भी आप लिंक दे ये देता हूँ। एक्सेप्टेड है सर इंडिया में, फ्रांसिस एंड हाँ टेलर? हाँ, ये बहुत ही, मतलब इसमें तो छपता नहीं है पेपर, ये बहुत ही टफ होता है इसमें। फ्रांसिस एंड टेलर जो होता है ना, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिनाउंड प्लेसेस वेयर। सर ये पैसा तो नहीं मांगता है? नहीं नहीं, ये आप जो पैसा मांगेगा मत दिए, उसमें प्रिंट मत कीजिए ना, बहुत सारे जर्नल्स मिल नहीं, जाएंगे आपको। फ्री फ्रांसिस फ्रांसिस वाला पैसा तो नहीं मांगता है? जनरली नहीं मांगते हैं, कुछ कुछ है मांगते हैं, कुछ कुछ है। जनरली ये सब फंडेड होते हैं, ऑलरेडी फंडेड रहते हैं इन लोग, तो फंडेड होने के कारण हमसे पैसा नहीं लेते, वो फंडिंग एजेंसी इनको पैसा देती है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक्चुअली मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पब्लिश करवाया था। जी जी, उसमें सर उन्होंने एल्सवियर में पब्लिकेशन दिया था बहुत बढ़िया। इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीडिंग, मटेरियल्स टुडे प्रोसीडिंग के नाम से है। हाँ हाँ, तो मेरा सर ये क्वेरी था कि क्या ये पेपर की इक्विवेलेंट है कि ये प्रोसीडिंग, मतलब क्या इसको कैसे काउंट करेंगे? उसको वो जो है देखिए, आपका जो है वो प्रोसीडिंग में आपका पेपर छपा है ना। जी जी। हाँ तो ठीक है ना, तो आपका पेपर इसका मतलब जो है वो इसमें जो भी जर्नल होगा
उसको ये अपना एल्सवेयर का जर्नल है ना वो तो। जी सर, एल्सेवियर के जर्नल्स हैं, साइंस डायरेक्ट में अवेलेबल है वो। हाँ फिर तो आपका SCI इंडेक्स हो गया ना, और क्या। जी जी जी। तो सर ये क्या पेपर की इक्विवेलेंट है? पेपर के इक्विवेलेंट मतलब? मतलब जैसे कि पीएचडी में 2 पेपर बोलते हैं, तो क्या हाँ ये नहीं वो मैं कह एक्सेप्टेबल रहा हूँ, है अभी कि? अभी जब से आपका कोर्स वर्क शुरू हुआ है तब जी से सर। जो आप पब्लिश करेंगे वो इंक्लूड होगा, उसके पहले वाला कुछ भी कंसिडर नहीं होगा। जी जी जी। नहीं सर, एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि पब्लिकेशन थ्रू कॉन्फ्रेंस इज वेरी इजी, बट यदि हम डायरेक्ट पेपर सबमिट कर रहे हैं हम्म, जर्नल्स में, तो वो बहुत मुश्किल होता है सर उस केस में। हाँ वो तो, हाँ वो है, जी वो एक पॉइंट तो है। जी। ठीक। सर एक और क्वेरी थी कि जी जी। हर एक रिसर्च पेपर का क्या जरूरी है उसका थीसिस होना? हर एक रिसर्च पेपर का थीसिस होना जरूरी नहीं है। देखिए जो रिसर्च पेपर्स होंगे ना, दैट मे बी अ पार्ट ऑफ ए रिसर्च थीसिस। हाँ, जैसे आपने कहा कि हम कोई किसी की थीसिस देख रहे हैं, उसकी हम्म उसमें जो गैप्स थे, तो वो हम्म। गैप्स को लिख के मैं रिसर्च पेपर एक बना सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका वो उसका लिटरेचर रिव्यू बन जाएगा आपका। लिटरेचर रिव्यू बन जाएगा ना सर? हाँ 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 मतलब मेरे टॉपिक से रिलेटेड। बिल्कुल। ओके सर, ओके सर। चलो, ये जो है ये टेलर एंड फ्रांसिस के वेबसाइट में देखिए, मेरा पेपर भी पब्लिश है। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा शायद। हाँ सर, ये दिख रहा ओपन है। एक्सेस, हाँ ओपन एक्सेस है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, या हाँ आप सर, दिख डाउनलोड रहा है, दिख करके भी रहा है देख सर। सकते हैं। दिस नॉवल फजी डॉक्यूमेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल फॉर फोरकास्टिंग, ये जो है टेलर एंड फ्रांसिस में पब्लिश हो चुका है। ठीक है, ये एक्चुअली मेरे एल्सवेयर का पब्लिकेशन है जो इसमें इंक्लूड हुआ है। ठीक। सर मतलब तो एल्सवेयर वेबसाइट के अंदर कई सारे पब्लिकेशंस होते हैं क्या? हाँ एल्सवेयर जो है ना, पब्लिकेशन हाउस। हाँ एक पब्लिकेशन हाउस है। उसमें बहुत सारे जो है वो हैं, क्या बोलते हैं, जर्नल्स हैं। खूब सारे जर्नल्स हैं वहाँ पे। तो आपके हिसाब से आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगता है वो जर्नल पे आप पब्लिश कर सकते हैं। जो पैसा ना मांगे। हाँ पैसा नहीं मांगना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने पब्लिश किया था इसमें फजी इंफॉर्मेशन इन इंजीनियरिंग में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लिया था इसमें। लेकिन इसमें टाइम लगता है, मतलब मुझे करीबन 1 साल लग गए थे जब मैंने अपना इनिशियल ड्राफ्ट दिया था। वो ड्राफ्ट इन लोग एक्सेप्ट किए थे करीबन 9-10 महीने बाद एक्सेप्ट किए थे। मतलब रिप्लाई 9-10 महीने के बाद ही आया था। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ चेंजेस करने बोले, फिर वो चेंजेस करके मैंने दिए, फिर 1-2 महीने और लगा। फिर कुछ ग्रामेटिकल उसमें चेंजेस करने बोले, उसके बाद फिर जो है फाइनली एक्सेप्ट हुआ। तो इट टेक्स 1 ईयर, अराउंड 11 months to 1 year लग जाता है फ्री जर्नल पे अपना पब्लिश करने के लिए। तो उस सर वो टाइप से अपने, कोपस और हाँ सीआई से किसी में भी हो सकता है। हाँ, स्कोपस और एससीए दोनों में से किसी में भी आप अगर पब्लिश करें तो वो करीबन 8 महीने से 1 साल तक लग ही जाता है उसमें पब्लिश होते होते। 8 महीने तो मान के चलिए। तो सर ये लोग उस इन्फॉर्म कैसे करते हैं कि इसमें आपको ईमेल, ये चीज करनी है, मेल के थ्रू? कंप्लीट मेल, ईमेल के थ्रू ही कन्वर्सेशन चलता है। ओके। तो सर हमको अलर्ट बीआईटी रहना की पड़ता है। लाइब्रेरी में एएसएमई का, हेलो हाँ जी बोलिए। सर, बीआईटी की लाइब्रेरी में एएसएमई एंड टेलर एंड फ्रांसिस का सब्सक्रिप्शन है क्या? है, अभी लेटेस्ट है कि नहीं पता नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। कुछ कुछ जर्नल्स एक्चुअली हैं, कंप्लीटली पूरा जो है वो टेलर फ्रांसिस को नहीं कह सकते हम लोग। उनमें से कुछ सिलेक्टेड जर्नल्स ही जो है वो है सब्सक्राइब्ड है, क्योंकि बहुत महंगे हैं ये सब, डॉलर्स में मांगते हैं लोग जो सब्सक्रिप्शन। यस सर, यस। तो इसीलिए जो है कुछ सिलेक्टेड है, लेकिन है, आप जैसे अपने कॉलेज में आएंगे ना कभी, तो कॉलेज के जो इंटरनेट को अगर यूज करेंगे ना, तो आपको कोई लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप वेबसाइट पे डायरेक्टली जाएंगे तो आपको जो जो सब्सक्राइब्ड जो कंटेंट है ना आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने बीआईटी के नेटवर्क पे आना पड़ेगा, मतलब आपके बीआईटी के कैंपस में आके अपने लैपटॉप से उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ओके सर। सर ये आपने जो टेलर और फ्रांसिस में किया है, इसका सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन ही भेजा होगा उन लोगों ने? इन लोग सर्टिफिकेट्स नहीं भेजते हैं, ये पब्लिश कर देते हैं, और ये दिस इज द सर्टिफिकेट, अभी जैसे आपको दिख रहा है ऑनलाइन, दिस इज द हाँ सर्टिफिकेट। हाँ।
क्योंकि इससे सर बड़ा जब हम CSVTU जाएंगे और हम ये बताएंगे कि हमने ये पेपर लिखा, यहाँ पब्लिश हुआ है, तो वो कहेंगे आप सर्टिफिकेट दिखाइए या ऐसा कुछ बताइए, तो क्या बोलेंगे हम? नहीं नहीं, उसमें जो है ना, जैसे आपके पास ईमेल आपका रहेगा, ईमेल तो रहेगा ही, कि उसमें ईमेल में हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मेल जरूर आएगा कि योर जर्नल योर पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड इन अवर जर्नल फॉर पब्लिकेशन, ऐसे आएगा। तो दैट इज द प्रूफ। और प्लस ये जो है, जो दिख रहा है आपको ऊपर में, ये DOI करके लिखा हुआ है, देखिए मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना, DOI/ABS/ ये जो DOI लिखा है ना, तो दैट इज द डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो दैट इज द प्रूफ। यहाँ पे देखिए, ये भी DOI जो लिखा है ना, दिस इज द प्रूफ। इसको भी आप दे सकते हैं कि दिस इज द प्लेस वेयर माय आर्टिकल इज प्रेजेंट, ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी बोलिए। सर जैसे ये जो कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें वो लोग बोलते हैं कि स्कोपस में पब्लिश करेंगे, जो पेपर सिलेक्ट होगा वो स्कोपस में पब्लिश होगा करके। जी तो सर वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है? नहीं, अगर अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि स्कोपस में पब्लिश होगा तो जरूर करेंगे। ऐसा झूठा क्लेम तो करना नहीं चाहिए वैसे जनरली जो है वो जो बोलते हैं वो करते ही हैं। अगर ऐसा कोई झूठा क्लेम सर करेगा तो हाँ। सर जैसे सर वो मतलब यहाँ पे कॉलेज में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें पेपर भी सिलेक्ट हुआ और वो ये बोल रहे हैं कि हम स्कोपस में पब्लिश करेंगे, और उसका सर जो अमाउंट रहता है वो अप्रोक्सिमेटली 25,000 से 30,000 तक होता है सर। हाँ, तो वो मतलब पेड वो भी जर्नल, शेयर्ड में होता है, तो वो पेड जर्नल है। पेड जर्नल है। हाँ, सर उसका उसका वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है ना? उतना नहीं रहता है, उतना नहीं रहता। और सर पेपर पब्लिश करना है मतलब डायरेक्टली हम वेबसाइट में जाके उसी में ही पेपर पब्लिश करना है, मतलब किसी हाँ, कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर इसके थ्रू नहीं जाना है? नहीं, कॉन्फ्रेंस के तो जा सकते हैं, जैसे मैंने भी कहा ना कि IEEE कॉन्फ्रेंसेस कुछ हैं जो अपने उसमें लिख देते हैं कि अगर आपने पेपर को पब्लिश किया, मतलब प्रेजेंट किया है, तो आपका पेपर जो है वो IEEE के एक पर्टिकुलर जर्नल में जो SCI या जो अप्रूव्ड है उसमें पब्लिश होगा। वो फ्री ऑफ चार्ज होता है, मतलब सिर्फ कॉन्फ्रेंस का पैसा आपको लगेगा, कॉन्फ्रेंस का जो ओके सर। चार्ज होता है वही लगेगा, लेकिन पब्लिशिंग का चार्ज नहीं लगेगा उसमें। अच्छा। ठीक है, जो पब्लिशिंग का चार्ज ले रहा है मतलब वो पेड जर्नल पे जा रहा है, तो पेड जर्नल पे जाना मतलब इट इज नॉट दैट मच अप्रिशिएट। सर सर ओके कई सर। बार वो लोग ये चीज नहीं बताते इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कि वो ये लिख कह देते कोपस या IEEE में जाएगा, लेकिन ये नहीं बताते कि पेड में जाएगा कि नॉन पेड में जाएगा। वो आप जो है ना उनको ईमेल करके पूछ लीजिएगा कि हमको पब्लिशिंग के लिए अलग से पैसा तो नहीं देना है ना, कॉन्फ्रेंस का जो पैसा हम दे रहे हैं उसी में सब कुछ इंक्लूडेड होगा कि नहीं। तो अगर वो बोलेंगे हाँ, तो इसका मतलब वो फ्री जर्नल पे ही जा रहे हैं। अगर बोलेंगे कि नहीं, आपको पब्लिशिंग का अलग से पैसा देना पड़ेगा, तो इसका मतलब जो है वो फिर वो पेड जर्नल पे जा रहा है। तो ये थोड़ा तो इंश्योर सर करना पड़ेगा। इससे बेटर हम साइट खोल के खुद ही उसको वहां पे कांटेक्ट करें हाँ, और वो पेपर को बेस्ट अपने होता है, डालें। बिल्कुल बेस्ट है, वही तरीका है। जैसे अभी SCI इंडेक्स जर्नल्स का लिस्ट को आपको फाइंड आउट करना है, जैसे मैं अभी SCI इंडेक्स लिस्ट ऑफ जर्नल्स में आपको अभी एक आपको वेब ऑफ साइंस, जिसको वेब ऑफ साइंस बोला जाता है, ठीक है, दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपको वो लिस्ट ऑफ जर्नल्स मिल जाएंगे जहाँ जो SCI इंडेक्स्ड है। ठीक है, अभी मैं इसको आपको सेंड करता हूँ। ठीक, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप सीधे जाके सर्च कर लीजिए, सर्च जर्नल्स करके जो ऑप्शन दिया है उस पर डायरेक्टली सर्च कर लीजिए जाके कि आपको कौन सा जर्नल पे जाना है जेट इज अप्रूव्ड बाय वेब ऑफ साइंस ग्रुप। इसको SCI ग्रुप बोलते हैं। SCI में मतलब साइंस साइटेशन इंडेक्स के कैटेगरी में आता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यू कैन सर्च द जर्नल हियर, सर्च जर्नल ISSN नंबर से सर्च कर लीजिए, या टाइटल या वर्ड से सर्च कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर फजी को सर्च करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये जितना भी आपको यहाँ पे मिलेगा ना, सब जो है SCI इंडेक्स जर्नल से मिलेंगे, जैसे एडवांसेस इन फजी सिस्टम्स, फजी एक्सक्यूज इंफॉर्मेशन मी एंड सर, इंजीनियरिंग, फजी एक्सक्यूज मी ऑप्टिमाइजेशन सर, एंड डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, जी
सर थोड़ा अर्जेंट वर्क से मुझे ये अभी क्लास बंद करना पड़ रहा है हाँ सर। ठीक रोल ठीक, मैं नंबर अटेंडेंस ले 38 लेता योगेश कुमार। हूँ, मैं अटेंडेंस ले लेता योगेश हूँ एक। कुमार सर। हाँ ठीक, ठीक है। अभी किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिर, नहीं पूछना है तो फिर अपन अटेंडेंस ले लेते हैं। सर पूछना है सर। अच्छा ठीक है, तो योगेश कुमार को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक। सर ये जो थैंक यू वेरी मच वेब ऑफ सर, थैंक साइंस यू है, वेरी मच। वेलकम। सर हाँ ये जी, जो बोलिए। वेब ऑफ साइंस है इसी को एससीआई जनरल बोलते हैं क्या? इसी में एससीआई जनरल्स हाँ, होते हैं? इसी को एसबीआई बोलते हैं। ये जो जर्नल्स आप देख रहे हैं ना, ये जो लिस्ट आ रहा है ये आपके सारे पास, नॉन पेड हैं? ये जनरली नॉन पेड रहता है। इसमें इसमें 90% नॉन पेड है, 90%। ठीक है, तो इसमें ये हमें सभी, पब्लिशर भी मिल जाएगा सर? ये सब मिल जाएगा पूरा। देखिए ना, पब्लिशर का नाम दिया है, लंदन का है ये वाला पब्लिशर। ये वाला पब्लिशर जो है वो इंग्लैंड का पब्लिशर है। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का पब्लिशर है। ठीक, सो इन्हीं में से सिलेक्ट करिए, इन्हीं में से सिलेक्ट कर लीजिए, ओके सबसे बेस्ट है आपको। आपके जो चाहिए आपको, यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए, जो भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे जर्नल टाइप करिए, उसी पे पब्लिश करिए। और मैं सजेस्ट ओके करूंगा एक से ज्यादा जर्नल्स पे एक साथ जो है आप एक ही कंटेंट को भेजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जर्नल आपको जल्दी रिप्लाई भेजेगा, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही कंटेंट को आप 2 से 3 जर्नल्स के पास भेजिए, 3 या 4 जर्नल्स के पास पास एक साथ भेज दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका एक्सेप्टेंस रेट जो है ना वो थोड़ा जल्दी ज़्यादा बढ़ेगा, और थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स भी आपको जल्दी मिलेगा। जो पहले पब्लिश करने के लिए बोल दे वहां बस पब्लिश उस, करा लें। उस रास्ते चल दो, हो गया बस। ठीक है, तो उससे आपका थोड़ा क्या होगा कि टाइम बचेगा। ओके सर। सर आज वाली क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सर, इसका सर वीडियो सर अपने जी हाँ, जी हाँ, मैं यूट्यूब अपलोड चैनल कर पे दूंगा। डाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं डाल दूंगा। ठीक है सर सर मुझे जी, बोलिए बोलिए। सर एक सिटी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। ये जो सिटी में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन और हम हमारा जो आरएम का जो टॉपिक्स रहेंगे, आधे सिलेबस के आधे आधे टॉपिक्स ही रहेंगे ना बट सर? अप्रोक्सीमेटली जो है हाफ टॉपिक और CT1 में रहेंगे। और जो और दूसरे हाफ जो रहेंगे वो सिटी 2 में रहेंगे ना सर? जी हाँ, जी हाँ। तो मैं अभी जो हाँ, हाँ सर, मैं एक्चुअली काम करूंगा कि मैं आपको जो है ना सबको एक वर्ड फाइल शेयर करूंगा, वर्ड या PDF फाइल शेयर करूंगा, जिसमें Right. क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन बैंक। अच्छा तो सर, आप वो क्वेश्चन बैंक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो CT1 CT2 दोनों के लिए रहेगा वो। बिल्कुल सर, उसको दे दीजिए। क्योंकि ये जो मैं सिलेबस जो देख रहा था उसमें जैसे लिखा है कि वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स लाइक MS वर्ड, लेटेक्स और हम तो सिर्फ MS वर्ड ही किए हैं, हाँ तो उसी से ही रिलेटेड आएंगे ना सर हाँ क्वेश्चंस? हाँ, क्योंकि लेटेक का जो है वो आपको बाद में और बताया जाएगा। मैं जब अपना सेशन खत्म कर लूंगा ना अपना, उसके बाद फिर और प्रोफेसर है वो आके आपको लेटेक के बारे में बताएंगे। तो ये सिटी 1 के लिए रहेगा क्या सर? CT1 के लिए अभी तक जो अपन कर रहे हैं वही रहेगा। अच्छा अच्छा सर, ओके सर। तो वही सिटी 1 का सर एक्चुअली इनका हमको ये चाहिए था कि कहाँ तक सर मतलब इनका सिलेबस रहेगा वो पता नहीं चल रहा है एक्चुअली। हाँ, आरएम सर और इनका सीए का। इनका मतलब है, सर इनका मतलब है आप मार्कर से मार्क कर दीजिए और हाँ उसको फोटो खींच के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, यहाँ तक आएगा तो ठीक ठीक सब लोग अपने सिलेबस से मैच कर लेंगे, ये चाहते हैं एग्जैक्टली ये। सर, वो ठीक है। तो फिर वो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा कि सिटी 1 के लिए इतना हाँ हाँ, पोर्शन हमको बिल्कुल भी तैयारी बिल्कुल बिल्कुल, करनी मैं है। पोर्शन को हाईलाइट करके आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत सर आरएम का भी कर सर देंगे सर, ग्रुप आरएम का हो जाएगा? नहीं। RM का वो सर कर देंगे, CA का मैं कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक सर है, सीए का आप तो मार्क करके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। ओके सर, अच्छा, थैंक यू अभी सर। मैं एक जो है ना, देखिएगा अभी मैंने चैट में भेजा है। इसमें जो है जब आप सिटी पेपर देंगे उसका इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब आप सिटी पेपर देंगे तो उसका फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सिटी पेपर के ऊपर, हर पेज के ऊपर आपका नेम और रोल नंबर होना चाहिए। हर पेज के ऊपर नेम और रोल नंबर होगा, और हर एक पेज के नीचे आपका सिग्नेचर होगा। तो एक कॉपी आप ले लेंगे, कॉपी में आप जो है सिटी पेपर को लिखेंगे, आंसर्स को लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को आप उसमें लिखेंगे, और उसको स्कैन करके PDF बना के हमको भेजेंगे। ठीक है, तो स्कैन करके जो PDF बना के भेजेंगे उसको याद रखिएगा, कैम स्कैनर या डॉक स्कैनर, ये बहुत अच्छे 2 एप्लीकेशन हैं आपके मोबाइल में। डॉक स्कैनर करके एक है और एक कैम स्कैनर है, ये दोनों बहुत बढ़िया हैं, इनको यूज़ करिए आप।
स्कैन करने के लिए हर एक पेज को स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ बनाएंगे। सिंगल पीडीएफ बनाने के बाद जो पीडीएफ का जो टाइटल है वो ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो अभी आप देख रहे होंगे, क्लास रोल नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड डॉट पीडीएफ। तो ये आपका पीडीएफ फाइल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी CT1 होगा तो इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल का नेम आपको प्रिंट करके मतलब उसको सेव करके सेंड करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड जो है वो RM के लिए और CA के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इस चैट बॉक्स में देख लीजिए। और एग्जाम्पल भी दे दिया है। अगर अब क्लास रोल नंबर यूज़ करेंगे अभी, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको मिला नहीं है, तो क्लास रोल नंबर यूज़ करेंगे। तो जैसे अगर 01 क्लास रोल नंबर है और CA का पेपर आप अगर जो है पीडीएफ बना के भेज रहे हैं तो 01_721111 ब्रैकेट 21.pdf ये फाइल बना के आप भेज देंगे। सो रोल नंबर 1 का ये हो जाएगा, रोल नंबर 2 के लिए 02, रोल नंबर 3 के लिए 03 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मेट मतलब ये 722 सर 4 times 1 ये सब्जेक्ट कोड है। ये सब्जेक्ट कोड है, ब्रैकेट में 21 ये सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, CA का सब्जेक्ट कोड है ये 4 बार 1 है ब्रैकेट में 21। RM का कोड है 776111 ब्रैकेट में 76। और जो आगे है ये हमारा रोल नंबर है, क्लास रोल नंबर। हाँ, क्लास रोल नंबर है। उसके बाद अंडरस्कोर लगाएंगे, उसके बाद फिर जो है सब्जेक्ट का कोड और .pdf रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे? ये अभी डाल दिया मैंने। जी, थैंक यू सर। वेलकम। यस सर, आ गया। थैंक यू सर। सर जैसे हम इसके हाँ, क्वेश्चन बैंक भी अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। ओके सर जैसे कुछ लोगों के पास फोन मतलब इतना अच्छा है नहीं, जी तो मतलब वो थोड़ा खराब भी है तो चेंज करने लायक है, लेकिन अभी पैसा नहीं है, तो हाँ। उसको सर हम ये कॉपी को ले जाके इंटरनेट कैफे पे स्कैन करा के हाँ फिर हाँ, आप अपलोड कहीं करते से भी हैं। स्कैन करिए, कहीं से भी स्कैन कर लीजिए। प्रॉपरली मतलब क्लियर होना चाहिए स्कैनिंग, ध्यान में रखिएगा कि A4 साइज में स्कैन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम बड़ा सा स्कैन कर दिया, वो हम जो है उसको देख नहीं पा रहे, बहुत जूम आउट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर आप जो कितने है MB का होना चाहिए, पूरी फाइल कितनी MB की होनी हाँ, चाहिए उसको लगभग? कोशिश करिएगा कि बहुत बड़ा ना हो फाइल, कुछ 1 1 MB से कम में होना चाहिए सब हाँ, कुछ? 1 MB या 1 MB से कम होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। जनरली हम जो कैम स्कैनर वगैरह से स्कैन करते हैं ना, वो 1 MB से कम ही रहता है, क्योंकि मोबाइल में सेव होता है, बहुत छोटा रहता है वो फाइल, तो ठीक रहता है वो। बाकी अगर आप सर बाहर मेरा से भी कैमरा स्कैन हाँ, बाहर से भी बाहर स्कैन से कर स्कैन सकते हैं, करा कोई है। दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि A4 साइज में वो समा जाना चाहिए, मतलब A4 साइज के हिसाब से उसको स्कैन करिएगा। ओके। ठीक है, तो ये अपना गाइडलाइंस हो गया। CT के लिए एक बेसिक मैंने अभी आपको गाइडलाइंस बता दिया, तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। ठीक, होपफुली अभी क्वेरी सबका क्लियर है, हम अटेंडेंस ले सकते हैं। यस सर, हाँ सर ठीक, ले लीजिए। चलिए।